Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all in today's session, and today we're going to start from a discussion related to our topic, which is Be Innovative, Act with Creativity, Design Experiments. That is the discussion we have to talk about today from the book of Total Leadership written by Stewart D. Friedman. And this is the subject, leadership, emotional intelligence, and decision making, in which we are interacting. Okay, when we talk about leadership experiments, it is said that a total leadership experiment is a planned change. Okay, so planned change would mean that it is a conscious effort that at conscious level, you have to think about the expectations, you have to think about the priorities, you have to think about the rights and duties associated with the four domains we have, like ourselves, the family, the professional life, and obviously the community. So whatever we are going to do in our next course of action related to these four domains is basically known as the experiment. Okay. So, and remember one thing, that experiment can result into sometimes unexpected outcomes. Okay, it is a possibility. We cannot just ignore it, because in every course of action, there is always an involvement of risk. Okay. So that risk factor is there, and there is a probability that either your experiment is going to be successful and your experiment can even face unwanted outcomes. But obviously we are trying our level best कि हम अपने experiment में positive outcomes हासिल वो कर सकें. So direct or indirect impact of change in one domain can affect the other domains. That is very important thing. That's why I have put it into verbal intonation. कि एक डोमेन का जो इम्पैक्ट है वो दूसरी डोमेन्स को ऑब्वियसली इफेक्ट वो कर रहा होगा. सो इस चीज के बारे में हमें बड़ा केयरफुल रहना है कि हम चारों डोमेन्स को एक इक्विटेबल ग्राउंड्स के ऊपर एस्टैब्लिश वो कर सकें. तो फॉर एग्जांपल, चेंजिंग जॉब इम्प्रूव्स self-esteem and makes you a better father and friend. So that can be one of the possibilities we are going to have. So when we talk about leadership experiments, it is said that adapts to new circumstances with confidence. That with the passage of time, हालात में, वाक़यात में, मामलात में, एहसासात में, महसूसात में जो भी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, उनको बड़ा कॉन्फिडेंटली, बड़ा पॉजिटिवली वो फेस करना चाहिए. और एक्सेप्ट बाज़ औक़ात आपको करना पड़ता है बहुत कुछ जो शायद आपने पहले से प्लान नहीं किया होता. So trade-offs sometimes and continuous struggle pays off, because हमने पहले भी एक दफा इस बात पे फोकस किया था कि ये एक मुस्तकिल रिपेयर का प्रोसेस है. It's a continuous repair thing. Okay, it's a continuously reassurance हमें दरकार होगी. Continuous reassurance के साथ हम अपनी डेवलपमेंट को, हम अपने पर्सपेक्टिव्स को वो लेकर बेहतर तौर पर वो चल सकते हैं. Likewise, procrastination should not prevent from achieving goals. हमारी जो अप्रोच है, दैट इज द मेजर फिनोमेना जो कि हमें गोल की अचीवमेंट की तरफ लेकर जाती है. मस्ट अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट डोमेन्स आर इंटरकनेक्टेड टू प्रोड्यूस द फोर वे विंस. तो हमें इस चीज का भी एहसास होना चाहिए कि हमारे जो चारों नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट हैं वो आपस में लिंक्ड हैं, एसोसिएटेड हैं, और एक का इम्पैक्ट दूसरे पर आएगा. देयरफॉर हमें अपने फोर वे विंस को मुसलसल फोकस में रखना है और कोशिश करते रहना है कि हम हर तरफ अपना इक्विटेबल कंट्रीब्यूशन वो दे सकें. Likewise, जब हम leadership experiments की बात करते हैं, तो your author suggests that think through your game plan, specify your goals, and devise means for tracking progress. ठीक है, आपका पूरा एक, क्योंकि ये प्लान चेंज की हम बात कर रहे हैं, तो इसका पूरा एक फॉर्मेट होना चाहिए, एक कॉन्शियस लेवल के ऊपर एफर्ट होनी चाहिए, और हमें अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक करना वो आना चाहिए कि अगर हम कहीं पर बेहतर अपनी तवज्जो को करना चाह रहे हैं, अपने वक्त को किस वक्त को सर्व करना चाह रहे हैं, तो क्या हम उसको कर भी पा रहे हैं कि नहीं. तो वी हैव टू ट्रैक द प्रोग्रेस, ताकि अगर हम करेक्टिव एक्शंस भी लेना चाहें तो वो हम बर वक्त ले सकें. एंड ऑब्वियसली देन अवर टेंजिबल मटेरियल फिजिकल जो इंटरेक्शन है वो सब की सब इन्वॉल्व होगी. हमें सिर्फ थॉट प्रोसेस में अपने आप को ठीक नहीं करना, हमें टेक्निकली ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रखते हुए चीजों को इनकॉर्पोरेट वो करना है. Then your author starts talking about the be innovative, act with creativity, types of total leadership experiments. और जब हम types of total leadership experiments की बात करेंगे, तो the first set of experiments your author is talking about is related to tracking and reflecting.
ट्रैकिंग एंड रिफ्लेक्टिंग में वो कहता है कि कीप अ रिकॉर्ड ऑफ एक्टिविटीज, थॉट्स एंड फीलिंग्स। ओके, बिकॉज बाज़ औक़ात हमारे जहन से बहुत सी बातें ओझल हो जाती हैं, हम बहुत सी बातें भूल जाते हैं। सो हमें उसका एक रिटर्न रिकॉर्ड वो मेंटेन कर लेना चाहिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स का, जिसके लिए इवन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी क्रिटिकल परफॉर्मेंस का एक मेजर हम यूज करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल, के ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई क्रिटिकल इंसिडेंट्स हुए हैं तो उनको हम लिख लेते हैं, ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर हम एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हुए उन क्रिटिकल इवेंट्स को वो देख सकें। जस्ट लाइक दैट समटाइम्स हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ, हमारे कंसर्न्स के साथ अगर कोई बात हमें लग रही है कि वी माइट फॉरगेट अबाउट इट, या वो चीज हमें लिख लेनी चाहिए अपने रिकॉर्ड के लिए, तो वी कैन कीप a diary, we can keep a record of the activities, thoughts and feelings, so that we can recall them more comfortably, not just by our intuitional perspectives but by conscious level efforts. इसी तरह create self awareness, identify the priorities, and obviously you have to track the progress towards the association of our stakeholders. The second set of experiments your author is talking about is related to planning and organizing. And he says that even we can maintain our to-do list, okay, ताकि आपको पता हो आपको आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपकी मीटिंग्स किस कॉन्टेक्स्ट में है, आपको कब किससे मुलाकात करनी थी, तो आपको फॉरगेटफुलनेस ना हो related to your associations and stakeholders, so you can have a to-do list with you. Likewise, you have to fulfill must keep promises, you have to be calculated and tactful, and you have to organize data, people and things so that कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसके साथ क्या मामला है, वो सब चीजें आपको बड़ा क्लियर कट अंदाज में वो पता हो। एंड ऑब्वियसली ये पॉसिबल तभी हो पाएगा व्हेन यू आर एबल टू कीप द रिकॉर्ड्स। उसके बाद वो बात करता है rejuvenating and restoring perspectives के बारे में। वो कहता है कि experiments to involve body, mind and spirit भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ दूसरों के साथ आपके मामलात नहीं है, आपकी अपनी जो जात है, आपका अपना जो वजूद है, आपका अपना जो कॉन्टेक्स्ट है, उसको भी आपने ऑब्वियसली वो जहन में रखना है। आपके स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में, आपके साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में, आपके फिजियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में ये सब बातें जो हैं वो इस तरह से मौजूद हो कि आप अपना कंट्रीब्यूशन सही तौर पर वो दे पाएं। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर दैट अ हेल्दी माइंड इज इन अ हेल्दी बॉडी। ओके, तो अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली जो जो फोकल पॉइंट हमारी अपनी जात है, दूसरों के हवाले से भी वो मुतासर हो जाएगी। सो फोकस ऑन योर टॉप प्रायोरिटीज, ट्रेन योरसेल्फ फॉर स्मार्ट आउटकम्स, एंड ऑब्वियसली ट्राई टू हैव सम टाइम फॉर ओनली योरसेल्फ। ओके, सो ये चीज भी हमें करनी चाहिए। उसके लिए मेडिटेशन, योगा, बहुत सारी एडवाइजेस जो वेस्टर्न वर्ल्ड में हमें एडवाइस की जाती हैं, सो दे आर ऑल देयर व्हेन यू हैव ओनली योरसेल्फ विद यू एंड यू आर थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ ओनली। ओके, लेकिन यहाँ पर एक चीज बड़ी क्लियरली हमें अंडरस्टैंड करनी है कि व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ डज नॉट मीन, आई रिपीट, इट डज नॉट मीन दैट यू बिकम सेल्फिश। ओके, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। टू बिकम सेल्फिश एंड टू जस्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं और इस फर्क को हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इस फर्क को हमें समझना चाहिए। ओके, सो जब आप अपने बारे में सोच रहे हो तो आप जाहिर है कि दूसरों से अलहदा नहीं हो, लेकिन वो वक्त, वो टाइम जिसमें कि आपको इस बात पर फोकस करना है कि आप और किस तरह बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं विद योर बॉडी, विद योर माइंड एंड विद योर स्पिरिट। So likewise, appreciating and caring is another set of experiments your author is suggesting, and says that have fun with people and appreciate them, develop strong bond with trust and respect, and professional interaction should be supported with social interaction, because हमने पहले एक दफा डिस्कस किया था concept of total human approach, और total human approach का कहना ये था कि when someone hires anyone, तो वो सिर्फ उसको साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली हायर नहीं करता, वो उसको सोशली हायर भी करता है। और जब तक उसकी सोशल लाइफ सेटिस्फाइड नहीं होगी तो एक एम्प्लॉय कभी भी अपना सही कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो नहीं दे सकता। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल जो मैं समझाने के लिए देता हूं कि ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी में हम अमूमन 8 घंटे गुजारते हैं और अपनी लाइफ में, सोशल लाइफ में हम 16 घंटे गुजारते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ का डबल इम्पैक्ट है ऑन योर सेल्फ एज कंपेयर टू द योर प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सोशल इंटरेक्शन शुड बी सपोर्टेड विद प्रोफेशनल इंटरेक्शन एंड वाइस वर्सा। Likewise, another set of experiments your author is suggesting is focusing and concentrating, और वो कहता है कि ensure psychological presence with physical. Okay, ये चीज बहुत अहम है कि आप जिस भी काम में इन्वॉल्व हो
आप वहां पर साइकोलॉजिकली और फिजिकली दोनों तरीकों से इन्वॉल्व हो। ये ना हो कि यू आर फिजिकली समवेयर और आप साइकोलॉजिकली कहीं और हो। तो वो जो आपका डिस्कनेक्ट है बिटवीन योर साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल कनेक्शन एंड प्रेजेंस, ये डिस्कनेक्ट आपको हर्ट कर सकता है। सो लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो टू अपॉर्चुनिटीज। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बड़ा सोचकर यहाँ पर आपके लिए नोट किया कि लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो टू अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज द पीपल हु बिकम अपॉर्चुनिस्ट, तो वो बाजुकात उस अपॉर्चुनिस्ट होने के नाते, उस अपॉर्चुनिटी की दौड़ में, उस चीजों को अवेल करने की दौड़ में वो बहुत से रिश्तों, नातों, बातों को कंप्रोमाइज कर जाते हैं। सो दैट इज नॉट समथिंग वी शुड बी डूइंग। So हमें बड़ा क्लियरली ये पता होना चाहिए कि what we have to do and what we don't have to do. So you have to learn the art of saying no to opportunities, and sometimes those opportunities might not be having more priority as compared to your presence at your home, or as compared to your presence at a community center, or as compared to your presence at organizational facility. तो हमें इस बात को बहुत क्लियरली प्रायोरिटाइज करना सीखना चाहिए कि किस अपॉर्चुनिटी को हमने ओके करना है, किस अपॉर्चुनिटी को हमने अवेल करना है, और किस अपॉर्चुनिटी को हमने नो कहना है। सो लीव वैल्यूलेस एक्टिविटीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वैल्यूलेस एक्टिविटीज, अक्सर औकात हम ऐसे कामों में, ऐसे मशागल में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो दरअसल आपके लिए कोई वैल्यू क्रिएट नहीं करे, दैट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। ओके, तो वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इससे हमें बचना चाहिए। सो लर्न लीव वैल्यूलेस एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल बिकमिंग वर्कaholic, एंड लर्न टू वैल्यू द पीपल। ओके, सो मैं अक्सर एक स्टेटमेंट इस बारे में कहता होता हूं कि समटाइम्स इवन असूल बेशक तोड़ दीजिएगा लेकिन इंसान बचा लीजिएगा, लेकिन इंसान को तोड़कर असूल बचाने का आपको कोई खास शायद हासिल वो ना हो। सो रिमेंबर वन थिंग कि आपको चीजों को प्रायोरिटाइज करना, उनको वैल्यू देना, उनको समझना वो जरूरी है, और उन वैल्यूज में, उन प्रायोरिटीज में सबसे पहले आर द पीपल अराउंड यू, बिकॉज द ह्यूमन प्रेजेंस, द ह्यूमन वैल्यू इज लाइक द मोस्ट। ओके, सो इस चीज को हमें समझना चाहिए। कुरान करीम में भी जैसे इशारे बारी ताला है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो एक इंसान की जो वैल्यू है दैट इज लाइक सुपरलेटिव। इसी तरह आपके जो रिवीलिंग एंड एंगेजिंग हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज आ रही हैं, जिसमें वो कहता है कि बी एक्टिव लिसनर, शेयर वैल्यूज एंड विजन, नर्चर कनेक्शंस एंड रिलेशंस, एंड कम्युनिकेशन रिमेंबर इज द की। ओके, सो आपको लोगों के साथ अपने ताल्लुक को बड़ा अच्छा एस्टैब्लिश रखना है। आपको अपनी वैल्यूज को भी शेयर करना है, बिकॉज अगर आप अपनी वैल्यूज को शेयर नहीं करेंगे, अपने विजन को शेयर नहीं करेंगे, तो दैट वुड बी लैकिंग एट योर एंड। ओके, तो आपको इस चीज को बड़ा क्लियरली पिक करना चाहिए कि आप अपनी वैल्यूज को, अपनी परंपरा को, अपने कॉन्टेक्स्ट को, अपने प्रायोरिटीज को लोगों के साथ शेयर करें, सो दैट दे शुड नो कि what you are focusing upon, and you should also be asking about their values and visions and priorities. ओके, और एक बड़ा अहम इसमें आपको जो मैं हिंट दे रहा हूं, एक टिप ऑफ द डे दे रहा हूं, और वो है बी एक्टिव लिसनर। ओके, सो लिसनिंग इज द आर्ट जो आपको बड़ा केयरफुली अडॉप्ट करना पड़ेगा, और इस लिसनिंग आर्ट से आप लोगों को बेहतर अंडरस्टैंड वो कर सकेंगे। बिकॉज रिमेंबर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हियरिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट लिसनिंग, जिसमें कि एम्पैथी हो, जिसमें कि कंसर्न हो, जिसमें कि कनेक्शन हो, जिसमें कि एक इंटरडिपेंडेंसी हो। तो दैट इज समथिंग व्हिच वी आर फोकसिंग अपॉन। इसी तरह टाइम शिफ्टिंग एंड रिप्लेसिंग इज द नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट योर बुक इज टॉकिंग अबाउट, और उसमें वो बात करता है कि इवन आपको इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी फ्लेक्स टाइम और फ्लेक्स प्लेस के जो फैसिलिटीज हैं उनका सहारा लेना चाहिए। फ्लेक्स मींस फ्लेक्सिबल टाइम एंड फ्लेक्सिबल प्लेस, कि अगर आप कनेक्टिविटी के जरिए एक जगह पर बैठकर अपना काम परफॉर्म कर सकते हो, तो समटाइम्स इट इज नॉट नेसेसरीली दैट यू हैव टू ट्रैवल एंड यू हैव टू गो समवेयर टू डू द टास्क। ठीक है, सो आप अपने टाइम को फ्लेक्सिबल रखें, आप अपने वर्क प्लेस को फ्लेक्सिबल रखें, सो दैट यू कैन gain and win more time and resources and energy for your better discussion and concerns. इसी तरह learn to benefit from technology, that is again very important. टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो आपको अपने मामलात को आजकल के मॉडर्न दौर में फैसिलिटेट करने में मदद देती है। सो लर्न टू बेनिफिट फ्रॉम टेक्नोलॉजी, लेकिन ये ना हो कि टेक्नोलॉजी से आप ऑब्सेसिव हो जाओ। अगर टेक्नोलॉजी से आप ऑब्सेसिव हो गए तो ऑब्वियसली उसका फिर बहुत ज्यादा नुकसान भी हमें होगा। वी माइट बिकम द स्लेव ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द सोशल मीडिया। ओके, सो यू हैव टू
बी जस्ट टेकिंग द बेनिफिट, ताकि आपको फैसिलिटेशन मिल सके टेक्नोलॉजी के होने से अपने ताल्लुक और मामलात को ठीक करने में. लीव ऑर्थोडॉक्स वेज ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. देयर कैन बी द न्यू वेज ऑफ रिवाइवल, न्यू वेज ऑफ कनेक्टिविटी, न्यू वेज ऑफ डेवलपिंग रिलेशंस. सो आपको इन तमाम बातों को जहन में रखना है कि जिद्दत वो इवन आपके ताल्लुकात के अंदर भी आ सकती है, मामलात के अंदर भी आ सकती है, प्रोवाइडेड कि उससे किसी के राइट्स और किसी की जो वैल्यूज हैं वो हर्ट ना हो रही हो. ओके, सो you have to play smart. That is tip of the day. Another tip of the day I can give you कि आप अपनी जिंदगी के डेफिनेशंस को स्मार्ट फैशन में डेवलप करना शुरू करें, बिकॉज हम एक कॉन्शियस लेवल चेंज की बात कर रहे हैं, कॉन्शियस लेवल एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे हैं. तो दैट इज द रीजन कि आई हैव यूज्ड दिस पर्टिकुलर वर्ड स्मार्ट. यू हैव टू बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम फ्रेम्ड इन ऑल ऑफ द कॉन्टेक्स्ट यू हैव विद योर लाइफ पैटर्न्स. इसी तरह डेलीगेटिंग एंड डेवलपिंग इज द नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट व्हिच योर ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, और वो कहता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लो प्रायोरिटी एंड हाई प्रायोरिटी टास्क्स. ओके, चीजों को मामलात को प्रायोरिटाइज करना सीखें. लर्न टू डेलीगेट राइटली. और अगर आपको ये लगे कि यू आर ओवरलोडेड, तो समटाइम्स यू मे हैव टू गो फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ योर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो दैट आप अपने फोकस को जिन हाई प्रायोरिटी टास्क पर रखना है वो रख सकें. सो लेट अदर्स ग्रो एंड डेवलप एज वेल. इट इज नॉट जस्ट फॉर योर ओन बेनिफिट. हम ये सारी बातें जो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं विन विन रिलेशनशिप के अंदर. विन विन रिलेशनशिप के अंदर आपको खुद भी जीतना है और अपने आप को और अपने साथ वालों को भी साथ लेकर चलना है कि वो भी अपनी मंजिल को, वो भी अपने मकसद को वो सही तौर पर अचीव वो कर सकें. हमें इस बात का भी शऊर होना चाहिए कि हम दूसरों में जीतने का हौसला भी पैदा करें और उनमें हार को सहने की सलाहियत भी वो पैदा करें. तो ये चीजें बड़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं कि वी हैव टू लर्न that we should be letting others grow and develop as well. Likewise, another set of experiments which your author is advising is related with your exploring and venturing. और वो कहता है कि never leave your core values. Stay focused and explore new avenues of development and progress. Change and novelty. Remember that change and novelty is necessary for everybody. ओके, सो ये चीजें हमारे लिए बड़ी अहम हैं कि हम न्यू एवेन्यूज, न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स को भी देखें, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी जो कोर वैल्यूज हैं उनको हमें कंप्रोमाइज पे नहीं लेकर आना चाहिए. समटाइम्स एक मुहावरा बोला जाता है कि व्हेन यू आर इन रोम डू एज रोमन्स डू. मैं हमेशा इस मुहावरे को तब्दील करके एक्सप्लेन करता हूं कि ऑल राइट, इफ यू आर इन रोम यू मे ट्राई टू डू how the Romans are doing, but remember one thing, you never ever should leave your individuality. तो अपनी शनाख्त, अपनी वैल्यूज, अपना कोर जो है उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए. ठीक है, सो वो क्या कहते हैं कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख. तो हमें पेवस्ता रहना है अपने वैल्यूज के साथ, अपनी परंपरा के साथ. So be innovative, act with creativity. Generating ideas for experiments is basically the next concern which your author is talking about. यहाँ पर वो experiment with 5 W's की बात करता है. वो कहते हैं कि get things done from a total leadership perspective. ठीक है, कि टोटल लीडरशिप पर्सपेक्टिव, टोटल लाइफ जो पर्सपेक्टिव है हमारा, उसको हम मद्देनजर रखें. और उस टोटल लाइफ पर्सपेक्टिव में हमें अपने मामलात को, ताल्लुकात को स्मूथ करना है, एक पैटर्न, एक सिंक्रोनाइजेशन पर लेकर आना है. गेट लाइफ इजियर विद वेयर, व्हेन एंड हाउ. दैट मीन्स दैट आस्क टफ क्वेश्चंस. ठीक है, आप क्वेश्चन करना सीखें और क्वेश्चन को एड्रेस करना भी सीखें कि बाज़ औक़ात सवाल करने से मामलात जो हैं वो सुलझ सकते हैं, आपस में क्लैरिटी क्रिएट हो सकती है कि हमारा व्यू पॉइंट क्या है, दूसरे का व्यू पॉइंट क्या है. सो रीथिंकिंग द वे यू आर, यू गेट थिंग्स डन. ओके, सो हो सकता है कि अगर वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज नॉट गिविंग यू द राइटफुल रिजल्ट्स, तो यू मे रीथिंक ऑफ डूइंग द थिंग्स इन सम अदर वे. ओके, तो पॉसिबिलिटीज को वो खत्म नहीं करें. पॉसिबिलिटीज शुड ऑलवेज सर्वाइव, पॉसिबिलिटीज शुड ऑलवेज बी देयर. ठीक है, ताकि आपकी जो एडाप्टेबिलिटी है, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गुरुकार आ सके. सो इन्वॉल्व योर वर्क ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज ऑफिस, स्कूल एंड होम. सबकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है. और इसमें बड़ा ख्याल रखिएगा, बड़ा सोच के आपको ये मैं एस्पेक्ट बता रहा हूं कि यू शुड बी वेरी मच केयरफुल कि आपने ऑफिस की कौन सी बात घर पे करनी है, आपने घर का कौन सा मामला कहीं और किसी और स्टेक होल्डर के साथ डिस्कस करना है. सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट कि व्हेन यू आर शेयरिंग, तो उस शेयरिंग में
जो मेन कंसर्न है हमारा, उस केयरफुल रहने का जो आपको मैं एडवाइस कर रहा हूं, और वो है कि आप पॉजिटिविटीज को ज्यादा फोकस रखें, ठीक है। बट पॉजिटिविटीज को फोकस रखने का मतलब ये हरगिज नहीं होगा कि यू फॉरगेट अबाउट नेगेटिविटीज। सो नेगेटिविटीज, शॉर्टकमिंग्स, कंडीशंस, कंस्ट्रेंट्स, दे वुड ऑलवेज बी अराउंड। हमें उनको पता हमें जरूर होना चाहिए, लेकिन कहां पर किसके साथ क्या बात कब करनी है, that is something for which you have to be very much organized and planned and keep yourself at conscious level. Okay, so enlist stakeholders, expect resistance, but win collective interest. ओके, सो समटाइम्स जब हम चेंज की बात करेंगे, हम नए ताल्लुकात और मामलात के एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें बाज़ औक़ात नो डाउट आपको कई तरह की रेजिस्टेंसेस का सामना भी हो सकता है करना पड़े। तो आपको उन रेजिस्टेंसेस को भी ओवरकम जो है वो करना चाहिए। और रेजिस्टेंस होना रेजिस्टेंट होना किसी शख्स का, डिफेंसिव होना किसी शख्स का, याद रखिएगा कि उसका नेचुरल राइट है, और ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है दैट समटाइम्स पीपल बिकम डिफेंसिव। तो हमें उनके उस नेचुरल रिस्पॉन्स को ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए। सो that response that sometimes people are resisting to share, resisting to express, resisting to discuss, so that is natural. Still we have to keep on trying. So try to combine yet distinct the different domains. ठीक है, हमें डोमेन्स की ऑब्वियसली नेचर फर्क है, डायरेक्शन फर्क है, कॉन्टेक्स्ट फर्क है, लेकिन उनके दरमियान एक ताल्लुक वो हमारी अपनी जात है, हमें उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए और दूसरों को भी बावर करवाना चाहिए कि उनके होने से हमारी अदर डोमेन्स जो हैं उसके ऊपर भी कोई ना कोई इम्पैक्ट वो आ सकता है। Therefore, now your author is coming up with exercise 13, जिसमें कि हम इन सारी बातों को अब कुछ प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि हाउ दिस इज गोइंग टू बी अप्लाइड। एक्सरसाइज 13 इज टॉकिंग अबाउट आइडेंटिफाई पॉसिबल 4-way wins। वो कहता है कि स्टार्ट बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके, स्टार्ट बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग, आपस में बहस मुबाहिसा से बातचीत चलेगी, शेयरिंग से बातचीत चलेगी, इन लाइट ऑफ व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम एवरीथिंग यू हैव डन इन दिस बुक सो फार, व्हाट कुड यू ट्राई दैट वुड प्रोड्यूस सम बेनिफिट फॉर ईच ऑफ योर 4 domains। एक बात याद रखिएगा कि अगर हम ये समझ रहे हैं किसी भी जगह पर कि हमारे जितने मामलात हैं वो सब के सब सेटल्ड हैं, तो इसका मतलब ये है कि वी माइट बी मिसिंग सम पार्ट। हम इस जिक्सो पजल के अंदर कोई ना कोई चीज मिस कर रहे हैं, बिकॉज हमने कॉन्सेप्ट बड़ा तवज्जो से पढ़ा और समझा, और वो ये था कि देयर इज ऑलवेज ए चांस ऑफ इंप्रूवमेंट, देयर इज ऑलवेज ए चांस ऑफ बेटरमेंट। ठीक है, वो काइजन अप्रोच आप अक्सर एक्सप्रेशन सुनते हो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का, तो ये बात याद रखिएगा कि ताल्लुकात और मामलात में भी एब्सोल्यूट हम में से शायद कोई भी नहीं है, हमें हर वक्त मजीद बेहतर करने की वो जरूरत है। और हमें इस बात को आइडेंटिफाई बेसिकली करना है कि हम रूटीन में तो अपने आप को जस्टिफाई भी समझ रहे हैं और मामलात को सेटल्ड भी समझ रहे हैं, लेकिन कहां पर किसके साथ किस मामले को मजीद बेहतर करने की वो जरूरत है। और बाज़ औक़ात याद रखें कि एक फ्रैक्शनल चेंज भी जो है वो कुछ अरसे के बाद एक बहुत बड़ा वॉल्यूम वो क्रिएट कर सकती है, वो फ्रैक्शनल चेंज पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में भी और नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में भी। सो ये चीज बड़ी हमें केयरफुली सोचनी पड़ेगी कि व्हाट कुड यू ट्राई दैट वुड प्रोड्यूस सम बेनिफिट, सम मोर बेनिफिट फॉर ईच ऑफ योर 4 domains। ठीक है, अदरवाइज अगर आप अपनी राइटिंग्स में ये बात लिख रहे हैं और ये बात समझ रहे हैं कि आपके जितने मामलात हैं उसमें आप सब ठीक है और सब सही है कि रिपोर्ट है, तो याद रखेंगे सब सही है कि रिपोर्ट का मतलब ये है कि आपने चीजों को फिर ठीक तरीके से एनालाइज ही नहीं किया, बिकॉज आपके ख्याल में मजीद बेटरमेंट की जरूरत नहीं है, आपके ख्याल में मजीद बेहतरी लाई नहीं जा सकती, हालांकि मजीद बेहतरी की, मजीद बेटरमेंट की हमेशा जरूरत होती है। एक टिपिकल एक्सप्रेशन समटाइम्स पीपल वुड यूज, और वो एक्सप्रेशन ये होता है कि जी मैंने तो कुछ नहीं किया, तो हमेशा मैं उसके जवाब में ये कहता होता हूं कि काश के कुछ कर लेते। राइट, सो रिमेंबर वन थिंग कि आप अपने आप को 100% शायद जस्टिफाई समझ जरूर रहे हो, लेकिन शायद होंगे नहीं। दैट इज द रीजन कि हमें दोबारा जाने की जरूरत है स्टेप 1 पर, हमें दोबारा सोचने की जरूरत है नए सिरे से कि कहां पर शायद कोई कमी वो रह गई थी और उसको हमें दूर करने की जरूरत है। आगे वो कहते हैं कि व्हाट कुड यू डू नाउ इन योर रियल वर्ल्ड ड्यूरिंग अ ट्रायल पीरियड ऑफ से अ मंथ और सो।
ठीक है, तो अगर हम आपको टाइम फ्रेम एलोकेट करें कि जी सपोजिटली यू हैव गॉट 1 मंथ और सम टाइम विद यू, तो आप अपने ताल्लुकात को, मामलात को, रिश्तेदारियों को, हालात और वाकयात को, एहसासात को, महसूसात को मजीद बेहतर कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे? आपके जहन में वो फर्स्ट थॉट क्या आ रही है कि कहां पर आपको लग रहा है कि बेहतरी की गुंजाइश अभी भी है? So don't worry about the obstacles. We will get to those shortly. Just open your mind to what's possible and compose a list of as many as you can, describing what you would do for each experiment in a sentence. ठीक है, in a sentence or two. Take your time to gather up a pocket full of prospects. ठीक है, तो अब हम सिर्फ इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि let's have another chance. Let's have another try to make things further better. ठीक है, फर्दर बेटर, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर किसी को हर वक्त हर मामले के अंदर वो होगी, तो मजीद उसको बेहतर करने की जरूरत, मजीद सोचने की जरूरत कॉन्शियस लेवल के ऊपर वो जरूरी है। ओके, सो एक्सरसाइज 14 अब हमें बता रही है कि चूज द मोस्ट प्रॉमिसिंग। यहां पे वो कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्पॉन्सेज टू द प्रीवियस एक्सरसाइज जो हमने 13 में भी अटेम्प्ट किया, नैरो योर लिस्ट डाउन टू द 3 मोस्ट promising by reviewing which will, आपको अब जो एक लिस्ट आपने बना ली तमाम मामलात की, उसमें से 3 आपको सबसे ज्यादा जो प्रॉमिसिंग हाईएस्ट प्रायोरिटी के फैक्टर्स हैं उनको पिक करना है। और क्या करना है? वो कहते हैं कि गिव यू द बेस्ट ओवरऑल रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। अब ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो हम आरओआई कैलकुलेट कर रहे हैं आपका, ये बेसिकली आपका एफर्ट का आरओआई है towards making better your relations, your prospects, your associations with the other people. Okay, so be the most costly to you if you don't do it. और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उन तमाम जो एक्सपेरिमेंट्स आपने लिखे कि किस तरह से मजीद चीजों को बेहतर बना सकते हो, उसमें से कौन से वो सेंसिटिव एरियाज हैं कि अगर आपने उनको एड्रेस ना किया तो हो सकता है कि यू माइट लूज द ग्राउंड। उसके बारे में वो यहां पर एक्सप्रेशन यूज कर रहा है कि बी द मोस्ट कॉस्टली टू यू इफ यू डोंट डू इट। सो हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट रिटर्न, हाईएस्ट जो इंपॉर्टेंस की जो हामिल चीजें हैं, जो लोग हैं, जो इकदाम हैं, उनको आपको सोचना है। Allow you to practice the skills you most want to develop. Okay, उसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। Be the most fun by having you do more of what you want to be doing and move you most directly towards your leadership vision. तो इन पॉइंट्स को जहन में रखकर आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी की जो 3 चीजें हैं, जो 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनको सबसे पहले वो पिक करना है। नाउ व्हाई 3? आपका ऑथर लिखता है कि 3 इज अ गुड नंबर to start with, you know, क्योंकि first 3 जब हम कर लेंगे तो obviously फिर next 3 की तरफ जाएंगे, but to start with it says 3 is a good number. Typically 2 experiments turn out more or less as planned and 1 goes haywire. तो हमने चीजों को haywire नहीं करना है, हमने चीजों को वेस्ट नहीं करना है, तो हमें 3 को पिक करना है as per the psychological patterns of the human mind perspective. वो कहता है कि उससे आपका जो concern होगा, it can be better focused. It is likely that they will go as planned, but investments in smartly designed experiments almost always pay off. The failure can hold the greatest value as it can provide the most memorable opportunity for learning. Keep in mind too that you can always change your plans for experiments as new information and opportunities arise. क्योंकि हो सकता है कि हमने जो 3 एक्सपेरिमेंट्स पिक किए हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी के, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें बड़ी जल्दी एहसास हो कि नहीं यार, इनमें से जो प्लान 2 था अब मुझे उसको तब्दील करने की जरूरत है, वो कारआमद नहीं हो रहा, उसकी जो एसोसिएशन विद द स्टेक होल्डर है वो इतनी अच्छी नहीं बन रही है, या मे बी आई हैव टू कम अप विद सम अदर पर्सपेक्टिव, सम अदर प्लान। तो आप में ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑब्वियसली हो भी सकती है। लेकिन यहां पर जो चीज इंपॉर्टेंट आपका ऑथर समझता है वो ये है कि हमें ये सब कुछ कॉन्शियस लेवल पर लिख कर करने की जरूरत है। लिखने से ये होता है कि आपके पास एक रिकॉर्ड बन जाता है, आप बाउंड हो जाते हो। अगर आप सिर्फ माइंड में चीजों को सोचते रहोगे तो माइंड ही उसकी बैठे बैठाए बहुत सी जस्टिफिकेशंस भी निकालता रहेगा। ओके, तो दैट इज द मेन रीजन कि इन तमाम एक्सरसाइजेस को हम रिटन फॉर्मेट में करने की तलकीन करते हैं। नाउ वंस द एक्सरसाइज 14 इज डन, नाउ योर ऑथर इज कमिंग अप विद एक्सरसाइज 15 और वो कहता है कि सेट योर गेम प्लान। यहां पे वो कहता है कि थिंक थ्रू योर गेम प्लान फॉर ईच एक्सपेरिमेंट, हाउ यू इंटेंड टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम वन डोमेन एंड ट्रांसफर इट टू अदर। अब 15 में हमने क्या करना है
कि आप एक डोमेन से जो एनर्जी ड्राइव कर रहे हो अपने इस तमाम एक्सपेरिमेंट को यूज करने से, हम उस एनर्जी को दूसरे डोमेन्स की तरफ ट्रांसफर करना चाहते हैं। ठीक है। नंबर 2, व्हाट असिस्टेंस और एडवाइस यू नीड टू इंप्लीमेंट दिस एक्सपेरिमेंट, एंड देन व्हाट वेज दिस इनिशिएटिव इज इनोवेटिव, हाउ इट्स न्यू फॉर यू। तो आपने ये जो भी इकदाम लिखा, इसमें नई चीज क्या थी, इसमें वो कौन सा ऐसा कॉन्शियस लेवल कंसर्न है जो आपने इन तमाम एक्सरसाइज से गुजरने के बाद अडॉप्ट किया, जो शायद आप पहले नहीं कर रहे थे। राइट तो उस न्यू चीज को वो समझें, बिकॉज हमने जैसे भी पहले अपनी डिस्कशन में कहा कि चेंज एंड नोवेल्टी इज नेसेसरी फॉर एवरीबॉडी। सो हमें एक नए अंदाज से, नए तरीके से, जिद्दत के साथ, इनोवेशन के साथ अपने ताल्लुकात को भी बेहतर से बेहतर बनाने की वो जरूरत है। ये कॉन्टिन्यूस एफर्ट है, मैं आपको इतना सा बता दूं, ये कॉन्टिन्यूस एफर्ट है, कॉन्टिन्यूस रिपेयर है, ये कॉन्टिन्यूस रीएश्योरेंस है। ठीक है, ये मुस्तकिल एक चीज को कहने के लिए आपकी कोशिश है। राइट, एक डायरेक्शन की तरफ आपकी प्रोग्रेस है, आपकी मूवमेंट है। एक नात का मिसरा अक्सर मेरे जहन में आता है जब मैं ये मिशन विजन के हवाले से बातें करता हूँ कि ये राह हक है, संभल कर चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। तो हमें अक्सर ये लग रहा होता है कि हमने अपना बेस्ट ऑफ द रोल अदा कर दिया, हमें मजीद किसी बेटरमेंट की जरूरत नहीं है, तो वहीं पर आप गलती पर हो जाते हो। आपको हर वक्त रीएश्योरेंस करवाने की जरूरत है, आपको हर वक्त अपने आप को इन्वॉल्व रखने की जरूरत है, कॉन्शियस लेवल के ऊपर, सोचते समझते हुए, जीते जागते हुए। राइट सो छोटे छोटे मामला, छोटी छोटी बातें, ये बाज़ औक़ात आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगी एज कंपेयर टू कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट, कोई बहुत बड़ा वाकया। तो उन छोटे छोटे मामलात में आप चीजों को समझना वो शुरू करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी की तरफ से एक हदीस मेरे जहन में आ रही है। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बी अवेयर, बी अवेयर, बी अवेयर। 3 मरतबा बी अवेयर कहने के बाद आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दैट सैटन हैज लॉस्ट all the hopes that he would ever be able to betray you in big things. Stop following him in small things. Be aware, be aware, खबरदार 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 कहने के बाद आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान तमाम उम्मीदें खो चुका कि वो कभी भी आपको किसी बड़ी बात में भटका सकेगा। उसको छोटे छोटे मामलात में फॉलो करना छोड़ दें। Stop following him in small things. ओके, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं और बड़ी दुआ और बड़ी इल्तिजा के साथ रिपीट कर रहा हूं कि छोटे छोटे जिंदगी के जो मामलात हैं वो ज्यादा अहमियत के हामिल हैं बनिस्बत कि कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी और फिर आप कोई बहुत बड़ा इकदाम करेंगे। डोंट वेट फॉर एक्सीडेंट्स, डोंट वेट फॉर इंसिडेंट्स, डोंट वेट फॉर एनी एलिफेंट टू कम एंड टेल यू दैट व्हाट यू हैव टू डू। ओके, अपने इकिगाई को आप कॉन्शियस लेवल के ऊपर नॉर्मल हालात में ही वो समझ जाएं। किसी धमाके, किसी बहुत बड़े वाक्य, किसी लॉस का वेट मत करें। ये लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि दे स्टार्ट कंप्रोमाइजिंग ऑन द स्मॉल थिंग्स, दे स्टॉप फोकसिंग अपॉन द लिटिल एस्पेक्ट्स, और वो इस इंतजार में शायद सारी जिंदगी गुजार जाते हैं कि शायद कोई जब बहुत बड़ी बात होगी तो फिर हम कुछ तब्दीली लाने का सोचेंगे। सो तब्दीली आज, इसी वक्त, इसी पहर, इसी लम्हे में हमें लाने की जरूरत है। हमें उस तमाम मामलात को आज दुरुस्त करने की जरूरत है, अभी दुरुस्त करने की जरूरत है। राइट, ये मौका, ये जिंदगी, अगली सांस यू नेवर नो आपको मिलेगी कि दोबारा नहीं मिलेगी। सो व्हाई टू वेट, व्हाई टू रिपेंट, व्हाई टू हैव रिग्रेट। तो ये तमाम बातें हमें सोचनी है, समझनी है, और जिनके बगैर हमारे लिए इन मामलात को आसानियों में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। हमारा सेशन टाइम खत्म हो रहा है, काइंडली नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन कीजिए।